Good afternoon, students. This is wave motion lecture number 2. Now, in the previous lecture, I told you that in every lecture I just try to do one or the other derivation, right? So, one major chunk in that lecture is gone, and then to have little variety, right? We will be doing MCQs based on that, so that our MCQs are also going ahead. I told you last time also, always do the homework and come, please, because this last chapters you don't get enough time to practice them. जितना क्लास में से करके गए बस हो गया, घर पे जाके कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, and that is the reason we keep very interesting chapters at the end, very interesting. जो लंबे और बड़े बड़े चैप्टर होते हैं ना, हम लोग पहले निकाल देते हैं. सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट, NLOM, फ्रिक्शन, बड़े बड़े चैप्टर्स या तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी. These are very scoring chapters. Okay, so previous class में we did SHP wave, right? So a quick recap of SHP wave. What was the standard equation of a simple harmonic progressive wave? Was it y is equal to a sine omega t minus 2 pi x by lambda? Yes or no? And this minus sign indicates that the wave is propagating along positive x direction, and it is indicating phase lag. Phase lag. Actually हम लोग जब ओरिजिनल इक्वेशन लिखते थे, हम लोग लिखते थे x is a sin omega t plus alpha. तो two things to be noticed. एक तो मैं x नहीं लिख रहा हूँ, बराबर, y लिख रहा हूँ. एक तो मैं x नहीं लिख एक रहा हूँ, एक y लिख रहा हूँ, right? Because x is reserved for distance and y is for displacement. तो एक x की जगह पे एक तो y लिखा. हम लोग यहाँ पे प्लस साइन लिखते थे. But in the previous lecture we had seen that as the wave propagates along negative x direction, there is a phase lag. For every lambda, the phase lag is 2 pi, and therefore for distance x, the phase lag is how much? So is it 2 pi x by lambda, right? So this was the first and the foremost equation of simple harmonic progressive wave. What was the second style of writing it? Y is a sine omega t minus kx, where k is nothing but propagation constant. K is nothing but propagation constant. Thereafter, the third style which we wrote was y is equal to a sine omega की जगह पे 2 pi by capital T, and therefore 2 pi comes out. Was it छोटा t upon बड़ा t minus x upon lambda? The fourth style of writing this was y is equal to a sine 2 pi frequency t minus x upon lambda, and finally we wrote this frequency as v by lambda. So even lambda came out, and therefore y is equal to a sine 2 pi by lambda vt minus x. Yes or no? अब लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, it was with the belief that okay fine, I'll be able to finish this article. तो होमवर्क मैंने गलती से 2-3 क्वेश्चन इसमें से भी दे दिए. No problem, we are doing it today and we'll be discussing these questions together. The next article is reflection of waves from a denser boundary and from a rarer boundary. What do I mean by that? The wave is traveling and it is falling on a denser boundary. Fixed support, hard support, rigid support. Then the wave is going to be reflected, right? And if it is falling on a rarer boundary, I mean this is a loose boundary, then the wave goes, right? This is a loose surface. This is called free end. अभी जैसे कोई कार ट्रक के साथ टकराया, बराबर? तो ट्रक इज अ मच डेंसर कंपेयर टू कार, right? मच हेवी होगा, या तो बाइक, राइट? लेकिन उल्टा सोचा तो कैन आई से इट विल ड्रैग इट विद इटसेल्फ? यस और नो? सो most important thing is when a wave is falling from a rarer boundary, there is no phase change. There is no phase change. That means phase change is zero. Phase change is zero. But when a wave is falling on a denser boundary, there is a phase change of 180 degree, or else it is pi radian. Or else it is pi radian. अब ये पूरा आर्टिकल जो मैं सिखा रहा हूँ ना, I am teaching you in a very simple and beautiful and shortcut method. मैं टेक्सचुअल लैंग्वेज से नहीं सिखा रहा हूँ. एक बार समझ में आ गया टेक्सचुअल लैंग्वेज, तुम लोगों को अपने आप समझ में आएगा. You pick up denser boundary and you talk about a transverse wave. You pick up a denser boundary and you talk about a transverse wave and apply this rule. Let us see what happens. This is a denser boundary.
this is a denser boundary. This one, it's a wall, or maybe it's a rigid support, and this is a transverse wave coming. This is a transverse wave coming, and it is falling on this denser boundary. अब मान लो इसका क्रेस्ट आया है, क्रेस्ट, राइट? मतलब मैं पूरा वेव नहीं बता रहा हूँ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ये सब नहीं बता रहा हूँ. This is the incident wave, and at the time of colliding with the wall, crest portion of it comes. Right? Now the rule says that phase difference has to be 180 degree. Wave phase difference should be 180 degree. If you think about this as a pulse, wave pulse, right? Then you are talking about crest falling on the wall, right? Phase wise, what is the independent phase of this point? 90 degree, pi by 2. Very good. So 180 का phase change मतलब the next point should be 270. Next point should be 270. That means when this wave is reflecting back, when the wave is reflecting back, this crest is reflected as trough, right? That means this becomes the reflected pulse, or this becomes the reflected wave. That means when a transverse wave is falling on a denser boundary, if it was crest which was falling, it will be reflecting as trough, and if it was trough which was falling, that will be reflecting as crest. Reason, transverse wave में LOP and LOV are at right angles. Yes or no? मतलब इसकी 180 डिग्री की काउंटिंग ऐसे करनी पड़ती है. Crest becomes trough. इसकी 180 की काउंटिंग ऐसे करनी पड़ती है. Crest becomes trough, right? So over here, crest is reflecting as trough. Trough is reflecting as crest. Now, why this part is very, very important? Because you may feel, therefore, sir, longitudinal wave में compression will be reflecting as rarefaction, and rarefaction will be reflecting as compression. Answer is no. Answer is no. Because now, if I think about longitudinal wave, this is rarefaction. This is rarefaction. Now a compression is coming on the wall. Now a compression is coming on the wall. Mind you, this is LOP. Mind you, this is LOP, line of propagation, but that itself is LOV also. तो इसकी काउंटिंग ऐसे नहीं करनी होती है, इसकी काउंटिंग ऐसे करनी होती है, इसकी काउंटिंग ऐसे करनी होती है, right? That means over here 180 का phase change will be this way. 180 का phase change will be this way. That means when I look at the incident wave, this is the incident wave. This is the incident wave longitudinal. This is rarefaction, this is compression. So when compression collides with the wall, compression will reflect back as compression. Compression will reflect back as compression, and rarefaction reflects back as rarefaction. Let me explain how and why. Let me explain how and why. Suppose बेटा ये ट्रेन है, and it's a mini train, few compartments. It's a mini train, few compartments. Say engine and maybe 2 bogies or maybe 3 compartments. Okay. Engine, compartment number 1, compartment number 2, compartment number 3. These are the couplings. Okay. And now this collides with mountain. बराबर? Collides. आप लोगों ने ट्रेन में इंजन में आगे देखा होगा, पावरफुल शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, उसमें पावरफुल स्प्रिंग्स होता है. तो when this collides, right, this will come back in the same sequence, ना? What is the sequence? 3, 2, 1, E. Will it come back as E 1 2 3? ये झर्क लग के वापिस आएगा, लेकिन सीक्वेंस तो यही होगा ना. सो अगर मैं इसको कॉम्प्रेशन गिनता हूँ, इसको रेरिफेक्शन गिनता हूँ, इसको कॉम्प्रेशन गिनता हूँ, इसको रेरिफेक्शन गिनता हूँ, इंजन टकरा है तो मुझे इधर भी इंजन ही दिखेगा ना. ऐसा तो नहीं होगा ना इंजन उड़ के इधर आया और मुझे ये रेरिफेक्शन दिखा. Yes or no? So though there is a phase change of 180 degree, it is something like this was compression. It becomes more compressed, and then because of the elastic nature of the medium, it bounces back as compression only. So most important thing is जो ट्रांसवर्स वेव के साथ हो रहा है वही लॉन्जिट्यूडिनल वेव के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है. If crest is reflecting as trough and if trough is reflecting as crest, because LOP and LOV are at right angles. तो यहाँ पे 180 डिग्री का रोटेशन ऐसे गिनना होता है, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री का रोटेशन सेम लाइन पे गिनना होता है.
That means compression appears as compression only and rarefaction appears as rarefaction only. ये पार्ट समझा सबको? क्योंकि बुक में बेटा ये स्टाइल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है. We have to think about some practical life example. Otherwise है ना कंफ्यूजन होती है कि सर यहाँ पे क्रेस्ट का ट्रफ और ट्रफ का क्रेस्ट हुआ, तो फिर यहाँ पे कॉम्प्रेशन का रेडिफेक्शन है, रेडिफेक्शन का कॉम्प्रेशन क्यों नहीं? Because the nature of waves only is different. याद करो, velocity of a transverse wave is given by root of t by mu, where velocity of a longitudinal wave is given by root of v by rho. एक इलास्टिसिटी ऑफ शेप पे डिपेंड करता है और एक इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे जब आप कंप्रेशन के बारे में बात करते हो, so it is about the particles located in a small volume. That means density is more. Is that clear? Now check मैंने क्या लिखा है, एकदम सिंपल वे में क्या लिखा है. खाली ये याद रखना बेटा, खाली ये, इसको ही मैंने खाली अलग कलर से लिखा है. देखो अभी नीचे क्या लिखा है कि इधर जो हो रहा है इधर उसका उल्टा हो रहा है. अभी ये ब्लॉक में जो हो रहा है ये पूरा उल्टा इधर होगा. दैट मींस हियर क्रेस्ट का ट्रफ, ट्रफ का क्रेस्ट, क्रेस्ट का क्रेस्ट, ट्रफ का ट्रफ. हियर कंप्रेशन का रेडिफेक्शन, रेडिफेक्शन का कंप्रेशन, क्योंकि इसका उल्टा होगा. ये कैसे, ये कैसे? ये बेटा मैंने क्या बोला था, ट्रेन माउंटेन से टकराया था, बराबर. अब ट्रेन माउंटेन से नहीं टकराया, रेलवे ट्रैक पे कोई एनिमल आ गया, या तो रेलवे ट्रैक पे कोई कार आ गया, या तो कोई साइकिल आ गया, जो ऑब्वियसली ट्रेन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है. हाँ, तो इमेजिन शी इज द ऑब्जर्वर. ओके, इंजन, फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट. ये ट्रेन आया, राइट, एंड दिस इज नॉट अ रिजिड वॉल, इट्स अ फ्री बाउंड्री, रेरर मीडियम. तो ये ट्रेन टकराया, ये टकराया, इंजन आगे गया, फर्स्ट कंपार्टमेंट इधर आया, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखा, फर्स्ट कंपार्टमेंट. एंड हु इज दैट फर्स्ट कंपार्टमेंट? रेडिफेक्शन. समझा? श्योर? वापस देखो, व्हेन इट वाज फॉलिंग ऑन अ डेंसर बाउंड्री, इंजन टकराया, इंजन वापस गया. सो एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है? कंप्रेशन टकराया, कंप्रेशन वापस गया, राइट. बट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ रेरर बाउंड्री, देन इंजन टकराया, कंप्रेशन दिखा, राइट. ये बाउंड्री फ्री था, आगे गया, तो इंजन भी आगे गया. उसके बाद फर्स्ट कंपार्टमेंट आया, फर्स्ट कंपार्टमेंट इज रेडिफेक्शन. समझा बेटा? श्योर? बुक में पूरा स्टोरी वो लोग ऐसे देते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि यार इधर ऐसा तो इधर ऐसा क्यों नहीं, राइट. बट विद दिस चार्ट योर आर्टिकल बिकम्स वेरी वेरी सिंपल, राइट. कम टू योर नोट्स प्लीज. यू आर ऑन पेज नंबर, सॉरी, हाँ, 7th and 8th. तो पेज नंबर 7 के लोअर हाफ पे पूरा स्टोरी दी है कि व्हेन अ वेव फॉल्स, व्हेन अ longitudinal wave falls on a denser boundary, what happens? सामने के पेज पे दिया है ना, ट्रांसवर्स वेव फॉल्स ऑन अ डेंसर बाउंड्री, व्हाट हैपेंस. और उसके नीचे एक नोट दिया है मैंने. वो नोट है ना बेटा, वो हम लोग जो शॉर्टकट बनाते हैं वो स्टाइल में, ये बुक में नहीं होता ये नोट, राइट. तो उधर आपको कौन सा पार्ट सबसे मेन हाईलाइट करना है? ट्रांसवर्स डेंसर बाउंड्री वाला, ट्रांसवर्स डेंसर बाउंड्री वाला. उसके लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे? वॉट एवर हैपेंस फॉर ट्रांसवर्स डेंसर, उल्टा हैपेंस फॉर ट्रांसवर्स रेयर. एंड वॉट एवर हैपेंस फॉर लेफ्ट पार्ट, exactly ulta happens for right part, because that is longitudinal wave. Repetition required before you go through. मैंने पहले भी बोला था बेटा, जब भी मैं क्लास में टाइम देता हूँ पढ़ने का, ऐसा ही सोचो कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और एक एक मोमेंट यूज करो, अच्छे से पढ़ो एकदम, राइट. टू द एक्सटेंट कि बस इधर से पढ़ के गया मतलब एकदम याद ही होगी. योर टाइम स्टार्ट्स. रिवाइज.
Done beta? Everybody finished reading? Keep going on. Carry on. Done now? So, now we are doing extremely important derivation, very interesting, very nicely applicable, particularly in entire field of electronics, entire field of radio waves, radio transmission, TV channels, then military, then musical instruments, right? Because it says matching the frequencies. हाँ, जब तक मैं बोलूँ नहीं बेटा बुक ओपन नहीं करना. Concentrate. Phenomenon of bits. Now in physics there are three words. One is bits. Next is bytes. And next is bits. ये बेटा बाइनरी डिजिट्स का शॉर्ट फॉर्म है. बाइनरी डिजिट्स चैप्टर सेमीकंडक्टर्स, राइट. बाइनरी डिजिट्स उसको कंबाइन करके ये वर्ड बना है. ये आपके फोन के मेमोरी में यूज होता है. किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, और ये वाला फिनोमेनन. इज दैट क्लियर? सो ओवर हियर वी नीड टू रिकॉल वन आर्टिकल फ्रॉम द चैप्टर ऑसिलेशन. याद करो बेटा ये आर्टिकल क्या था. When there are two SHMs of different amplitudes and different epochs but of same time period and frequency, they superpose with each other. Did we say that combination of two SHMs is SHM? Right? लिखने का स्टाइल देखो. Displacement is amplitude times sine of omega t plus epoch. Displacement is amplitude times sine of omega t plus epoch. Displacement is amplitude times sine of omega t plus epoch. इसका मतलब ये दोनों SHM का जो पीरियड था, फाइनल SHM का भी पीरियड वही है, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, एपोक सेम नहीं है. यस और नो? ये जो मैंने थोड़ा अलग फॉन्ट्स में लिखा है, इसका मतलब this is the resultant amplitude, this is the resultant epoch. But we also say that in this kind of problems, the examiner gives you these four things: 1, 2, 3, 4. तो आपका जो फाइनल आंसर्स आया उसमें वही चार चीजें यूजफुल होगी. What is my final resultant amplitude? R is root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of alpha 1 minus alpha 2. Alpha 1 difference alpha 2. And what is resultant epoch? Tan inverse of A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2 upon A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. Was it superposition theorem? ये सेम रिजल्ट्स बेटा आप लोगों ने लाइट में भी यूज किया. ये सेम रिजल्ट्स आपने क्या बोला कि when there are two coherent sources used, then you will get alternate bright fringes and dark fringes, bright fringes and dark fringes. Yes or no? बराबर. और उसमें आप लोगों ने ये सेम कॉन्सेप्ट यूज किया. What was the equation of resultant amplitude in light wave? Was it root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of delta, right? Delta, where delta is the phase difference. इसी को मैं स्क्वायर करूंगा तो will I get R square is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of delta. Yes or no? If I am taking two coherent sources of same amplitude and same period, will they go this way? Yes or no? So at the time of constructive interference, will I get the resultant amplitude as twice A, minus twice A, twice A, minus twice A, and so on? Means crest of one is falling with crest of other. या तो trough of one is falling with trough of other.
अल्टीमेटली इज इट कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में क्या हो रहा था? एक का क्रैश के बिल्कुल सामने दूसरे का ट्रफ आता है. दैट मींस इफ दिस इज वेव नंबर 1, राइट, वेव ट्रेन नंबर 1, then do you agree with me this is wave number 2? Yes or no? And that means crest and trough exactly cancel each other, and therefore my answer is this. And we proved that the bright fringes and dark fringes will come alternately. That is because of phase difference. 0 के बाद पाई आता है, पाई के बाद 2 पाई आता है, 2 पाई के बाद 3 पाई आता है, and so on. We are going to follow exactly the same rules. इसके ऊपर से हम लोगों ने इंटेंसिटी का भी इक्वेशन लिखा था. What are the equation of intensity? I resultant is I1 yes or no? Root I1 root I2 cos delta. या तो root I1 I2 together. अब ध्यान से देखो. I was using 2 SHMs. Now I am using 2 SHPs. Equation number 1. Y1 is equal to A sin 2 pi f1t plus 0 and y2 is equal to a sin 2 pi f2t plus 0. उसका बिल्कुल उल्टा है, उसका बिल्कुल उल्टा है. एम्पलीट्यूड सेम नहीं थे, एम्पलीट्यूड सेम है. ओमेगा सेम थे, ओमेगा सेम नहीं है. ओमेगा 1 ओमेगा 2. अल्फा सेम नहीं थे, अल्फा सेम है. आर यू गेटिंग दिस? मतलब यहाँ पे भी मैं 2 वेव्स ले रहा हूँ, वहां पे 2 SHMs लिया था, यहाँ पे 2 SHPs ले रहा हूँ. लेकिन ये वेव्स कैसे जा रहा है ध्यान से सुनो. ये वेव्स कैसे जा रहा है ध्यान से सुनो. If this is the line of propagation, right, then this is wave number 1 going. This is wave number 1 going. On computer we print the wave pattern like this, and this is wave number 2 going. This is wave number 2 going. आर यू ऑब्जर्विंग समथिंग? क्या हो रहा है? टाइम पीरियड सेम नहीं है, टाइम पीरियड सेम नहीं है. एक वेव फास्ट खत्म हो रहा है, एक वेव को थोड़ा टाइम डिले हो रहा है. आई गिव यू दिस एग्जांपल इन द लास्ट लेक्चर. लेट अस क्विकली रिकॉल व्हाट वाज इट. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सेंटेंस नंबर 1, साउंड वेव नंबर 1. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सेम सेंटेंस, same loudness. I maintained the same loudness, but I did not maintain the same time period. Second sentence मैंने second बार जब बोला बहुत fast बोला. Yes or no? That means time taken by me was less, and therefore frequency was more. Right? Now here what will happen? Crest of one will fall with crest of other. Crest of one will fall with trough of other. Then trough of one will fall with trough of other. बाद में ये पैटर्न उल्टा हो जाएगा. इसका ब्लू और इसका रेड आया था, तो आगे इसका रेड और इसका ब्लू आ जाएगा. सो व्हाट विल हैपन हियर? इट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बिकॉज दे फेवर ईच अदर. हियर इट विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. हियर इट विल बी कंस्ट्रक्टिव अगेन. हियर इट विल बी डिस्ट्रक्टिव अगेन. राइट? राइट? सो ओवर हियर व्हेन आई ऑब्जर्व द पैटर्न, over here when I observe the pattern and when I try to understand this on the computer in the form of visual, तो ये पैटर्न मुझे ऐसा दिखेगा. ये पैटर्न मुझे ऐसा दिखेगा. ये एम्पलीट्यूड A है, तो इसका एम्पलीट्यूड डबल A हो जाएगा. दिस इज 2A, 2A, -2A, -2A, दिस इज 0. और अगर मैं आगे जाऊं तो ये पैटर्न मुझे ऐसा दिखेगा. दिस विल बी लाइक दिस. And when I try to understand this in the form of amplitude, it will be like this. मतलब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जीरो हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जीरो हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, एंड सो ऑन. राइट? Constructive portion of this wave is called waxing, and destructive portion of this is called waning. Right? So it is alternately formed as waxing and waning. Maximum amplitude, zero amplitude. Maximum amplitude, zero amplitude, and so on. Right? Sound wise, how will it sound? अभी मैंने 2 sentences sound waves में बोला था ना, तो ये same sound wise कैसे sound होगा?
According to Newton's third law of motion, unless and until this is to every action there is equal and opposite reaction. ये मैंने last time बोला था आप लोगों को. Loudness, softness, loudness, softness. If it is sound wave, if it is visual, then this is called a beat wave. Yes or no? अब मुझे ये देखना है कि वैक्सिंग और वैक्सिंग दो कंसेक्यूटिव वैक्सिंग्स के बीच का टाइम इंटरवल कितना है. दो कंसेक्यूटिव वैक्सिंग्स के बीच का टाइम इंटरवल कितना है. ध्यान से चेक करो बेटा. आर द फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट? इसमें ध्यान से देखो तो एक्स वाला टर्म लिया ही नहीं है मैंने, क्योंकि इसका जो 2π/λ था वो सेम था, इसलिए मैंने लिया ही नहीं. सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंटरफियरेंस in terms of time. आप लोगों को एकदम डिट्टो आर्टिकल दिखाता हूं मैं सेम बुक में, सेकंड चैप्टर, पेज नंबर 3. ओपन करो प्लीज. सेम बुक में पेज नंबर 3, सेकंड चैप्टर, स्टेशनरी वेव्स. उसमें बेटा एकदम ऊपर दो इक्वेशंस प्रिंट हुए हैं, देखो. आर यू ऑन दैट पेज फर्स्ट ऑफ ऑल? Are you on that page first of all? Are you there? Yes. दो इक्वेशन देखो वहां पे. बराबर. अब ये दोनों इक्वेशंस ध्यान से देखो. Are the amplitude same? Are the timing same? Are the lambdas same? Everything is same. Everything is same, but directions are not same. Yes or no? इसका मतलब ये प्लस x है और ये माइनस x है. मतलब ये वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है और ये वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में. So this article is interference in space. This article is interference in space. जो सेम नहीं है उसका इंटरफियरेंस. इसमें सेम कौन नहीं था? फ्रीक्वेंसी सेम नहीं था, मतलब टाइम सेम नहीं था. दैट मींस दिस इज इंटरफियरेंस इन टाइम. इसमें कौन सेम नहीं है? स्पेस. एंड देयरफॉर इट इज इंटरफियरेंस इन स्पेस. एनीवेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन स्टेशनरी वेव्स. बुक वापस बंद कर दो बेटा. बैक हियर. वो लोग ये पैटर्न नहीं देंगे बुक में, राइट? पैटर्न कैसा आया समझा? दे विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद मैथमेटिक्स. नाउ डू आई नो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, when two or more waves arrive at a point simultaneously, then the resultant displacement is the vector sum of individual displacements. Yes or no? जब हम लोग वो डेरिवेशन लिखते थे, हम लोग ऊपर वेक्टर साइन नहीं रखते थे, जस्ट टू सेव स्पेस एंड टाइम, क्योंकि हमको पता ही है कि यार वो डिस्प्लेसमेंट ही है और वो वेक्टर ही है. सो इवन इफ आई डोंट पुट वेक्टर साइन, इट इज ओके. Yes or no? Over here I am having two SHP waves, so I am writing two of them. So what is y? Is it a sin 2 pi f1t plus a sin 2 pi f2t? ये प्लस जीरो है इसलिए मैंने नहीं लिखा. क्या फर्क पड़ता है? एनीथिंग प्लस जीरो इज द सेम थिंग, राइट? इज इट देयरफॉर y इज इक्वल टू a कॉमन, अंदर आएगा sin of 2 pi f1t plus sin of 2 pi f2t. Yes or no? This is of the type sin of C plus sin of D rule. Hopefully you remember this. Using sin of C plus sin of D is equal to 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. फाउंडेशन कोर्स मैथ्स मुझे मालूम है बेटा, बहुत टाइम पहले किया हुआ है, राइट? बट एक बात ध्यान में रखो, ट्रिग्नोमेट्री में आप बड़े बड़े डेरिवेशंस याद नहीं रखोगे चलेगा, राइट? नो प्रॉब्लम. बट जो बेसिक रूल्स है वो याद रखना है. कौन से? साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी, साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी. बिकॉज यू हैव गॉट 6 to 7 चैप्टर्स विच इन्वॉल्व द वर्ड हार्मोनिक. सत्येंद्र सर जब एसी सर्किट चालू करेंगे उसमें भी भर भर के साइन और कॉस ही आने वाला है, बराबर? मेरा ऑलरेडी 3-4 चैप्टर में आ चुका है. ऑसिलेशन में आ रहा है, वेव मोशन में आएगा, आया, स्टेशनरी वेव्स में आएगा. यस और नो? सो दिस इज ऑफ द टाइप साइन ऑफ सी एंड दिस इज साइन ऑफ डी, राइट? तो व्हेन आई गो फॉर साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी, विल आई गेट माय आंसर एज y इज इक्वल टू a एज इट इज. अभी अंदर 2 C
साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन टू, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा चेक करो प्लीज। मैं लिख रहा हूं 2 पाई f1t प्लस 2 पाई f2t अपॉन 2, तो ये मैंने साइन 2 पाई f1t प्लस 2 पाई f2t अपॉन 2, राइट, ये मैंने ऐसे लिखा, चलेगा? दिस इज साइन ऑफ 2 पाई f1t प्लस साइन ऑफ 2 पाई f2t अपॉन 2। मुझे एक स्टाइल फॉलो करना है। आई एम राइटिंग इट एज साइन ऑफ 2 पाई ft, आई एम राइटिंग दिस एज साइन ऑफ 2 पाई ft, समझा अच्छे से? अभी ये कैसे लिखूंगा मैं? cos ऑफ 2 पाई f1t माइनस cos ऑफ 2 पाई f2t अपॉन 2, समझा? If you see this part carefully, is it sin of c plus d upon 2? Is it cos of c minus d upon 2? Now very 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 important. मैंने ये इक्वेशन जो स्टाइल में शुरू किया था और ये इक्वेशन जो स्टाइल में शुरू किया था, मेरा फाइनल इक्वेशन वो स्टाइल में खत्म किया। सो जा बेटा, सो जा, जगह दूंगा मैं, वैसे भी तू कैमरा में आ नहीं रहा है। मुझे सब नहीं बोलना होता है यार, चालू लेक्चर में मुझे रिकॉर्डिंग में ये सब नहीं बोलना होता है, बट शेम ऑन यू। तुम लोग साला 3 लेक्चर में थक जाते हो, हम लोग 4 लेक्चर नॉनस्टॉप बोलते हैं, राइट? तुम लोग फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे पता ही नहीं। कोई मेरे सामने देखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूडेंट फोकस कर रहा है, हो सकता है वो अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। लेकिन मैं जब बोलता हूँ मुझे एक एक सेकंड के लिए बराबर बोलना होता है, बराबर? ये 100 बच्चे बैठे उसमें से एक जन मुझे ध्यान से सुन रहा है, और अगर मेरा गलती हो गया, विल यू फॉरगिव मी? नो। मतलब इधर हम लोग खड़े खड़े मरे, वो दैट इज ओके, सो जाओ तुम लोग, इट्स ओके। नॉट एवरीबॉडी कैन बिकम अ डॉक्टर, नॉट एवरीबॉडी कैन बिकम अ ब्रिलियंट इंजीनियर। ये मुझे बार बार बोलने को दुख होता है यार, ठीक है? तो प्लीज हो जाए। ओके, नाउ दिस इज ऑफ द टाइप a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, r sin ओमेगा t प्लस अल्फा। ये मेरा इक्वेशन का स्टाइल क्या था? a sin 2 पाई ft, ये जीरो नहीं लिख रहा हूं, चलेगा? a sin 2 पाई ft, ये जीरो नहीं लिख रहा हूं मैं। सो आई एम टेकिंग 2 waves, 2 सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम एपोक, जो मैंने जीरो लिखा था क्योंकि इनका स्टार्टिंग जीरो है, दोनों जीरो से शुरू हो रहे हैं, बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। Now here I have written the frequency difference should be less than 10 Hz. I will justify that also. Why frequency difference has to be less than 10 Hz only. अब ये मेरा रिजल्टेंट आंसर है मैथमेटिक्स के बाद, लेकिन मुझे मेरा रिजल्टेंट आंसर इसकी जैसा दिखाना है। मुझे इसका रिजल्टेंट आंसर ऐसे सुनना है, एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी t, मुझे ऐसे सुनना है, राइट? तो मैं साइन फंक्शन को टच नहीं करूंगा, मैं साइन फंक्शन को टच नहीं करूंगा। अभी जो बाकी बचा ना, वो बाकी वाले को मैं कॉमन नाम दे देता हूं, 2a cos this thing, let us give a common name to this। जैसे इसको r बोला था, वैसे इसको भी r बोलो। r over here is resultant amplitude, so let 2a cos of, ये 2 बेटा मैं कट कर सकता हूं, ये 2 कट नहीं करने का, ये कट कर सकते हो, ये साइन फंक्शन के अंदर है दोनों, तो ये 2 कट करना है तो कर सकते हो, ये कट नहीं करने का। यस और नो? लाइकवाइज ये कट कर सकते हो, ये नहीं करने का, करेक्ट? ये मैंने जानबूझ के कट नहीं किया है। रीजन, आई कैन कॉल दिस एज एवरेज फ्रीक्वेंसी, f1 plus f2 upon 2 can be called as average frequency। So this is 2a cos pi f1 minus f2 t, let me call this as r, let me call this as r, and what is r over here? Resultant amplitude। अभी मुझे सोच के बताओ बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इधर कौन डिसाइड कर रहा है? टाइम वाला टर्म की स्पेस वाला टर्म? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस इन टाइम। वैक्सिंग आने वाला है कि वेनिंग आने वाला है, ये कौन डिसाइड करता है? लोकेशन की टाइम? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस इन टाइम। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस, my this equation becomes super simple। सोचो, can I say therefore y is equal to r sin 2 pi ft। मैंने जो जो फॉन्ट स्टाइल में लिखा वो क्यों लिखा समझा? y1 and y2 are my 2 SHP waves। So y1 and y2 are the individual displacements of 2 SHP waves।
Y is the resultant displacement. R is the resultant amplitude. F is the average frequency. Don't say resultant frequency. This is average frequency. बराबर? Now, R मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए सब्स्टिट्यूट किया था. So whatever I substitute, I will have to convince the examiner. कि what do I mean by that? Who was R? R was substituted by me. Who is it? Resultant amplitude. So I should explain. कि what do I mean by resultant amplitude? So let us now discuss R. So explanation of R. Explanation of R. What is R? R is 2a cos of pi f1 difference f2 times t. बराबर? ये बेटा f1 माइनस f2 लिखो कि f2 माइनस f1 लिखो, प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये कॉस फंक्शन है, राइट? साइन ऑफ 60 माइनस 30 is plus half, but sine of 30 minus 60 is minus half, because sine of minus theta is minus sin theta. Cos of 60 minus 30 is root 3 by 2, and cos of 30 minus 60 also is root 3 by 2, because sine of minus theta is minus sin theta, but cos of minus theta is cos theta. बराबर? तो ये आप f1 माइनस f2 लिखो कि f2 माइनस f1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. नॉर्मली वी रेकमेंड द स्टूडेंट्स कि बेटा इधर डिफरेंस लिखने का. डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है ग्रेटर माइनस स्मॉल. अगर मैं 4 माइनस 3 लिखता हूं तो दिस इज 1. अगर मैं 3 माइनस 4 लिखता हूं तो दिस इज माइनस 1. लेकिन मैं 4 डिफरेंस 3 लिखता हूं या तो 3 डिफरेंस 4 लिखता हूं, ये दोनों का मतलब प्लस 1 मींस इट इज मॉड. इट इज मॉड. द वैल्यू इज पॉजिटिव. समझा अच्छे से? अभी आर के क्या पॉसिबिलिटीज है? आर के क्या पॉसिबिलिटीज है? वैक्सिंग एंड वेनिंग. वैक्सिंग कब मिलता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्सिंग? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्सिंग? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? आर इज द वैल्यू प्लस 2a या तो माइनस 2a. कंस्ट्रक्टिव या तो crest of one meeting with crest of other, या तो trough of one meeting with trough of other. Ultimately they favor each other. What is the meaning of waning? R is 0. R is 0. Yes or no? Yes or no? So let us solve this first. Can I say 2a cos of pi f1 difference f2 t is equal to plus minus 2a? Therefore 2a gone. Therefore cos of pi f1's difference f2 t is equal to plus or minus 1, and therefore pi f1 difference f2 t is equal to cos inverse of plus minus 1. तो बेटा कौन से एंगल के लिए cos प्लस 1 आता है या तो माइनस 1? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई and so on. So can I say pi f1 difference f2 t is equal to, याद करो, 2n पाई बाई 2. मैं चाहता तो n पाई लिख सकता था, मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं बिकॉज इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, दिस इज इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. तो इसको मैं लिख सकता हूं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल. तो मैं चाहूं तो इसको n पाई लिख सकता था, मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया बिकॉज 2n इज द इवन इंटीजर. 2n is the even integer. Yes or no? Let us continue. So what will I get over here? Pi gone. Yes or no? 2 also gone. मैंने लिख के बाद में कैंसिल किया because first I wanted to say that 2n is an even integer. So what is the formula for time? Is it n upon f1 minus f2? Because मुझे ये देखना है कि मुझे कौन से टाइम पे वैक्सिंग सुनाई दिया और कौन से टाइम पे वेनिंग सुनाई दिया, या तो मिला. Got it? So this is the expression for time to get vaccines. Yes or no? अभी n equal to 0 रखो, बाद में n equal to 1 रखो, बाद में n equal to 2 रखो, तो आपका फर्स्ट आंसर क्या आया? t0 is 0. सेकंड आंसर क्या है? t1 is 1 upon f1 difference f2. दूसरा आंसर क्या है? t2 is 2 upon f1 difference f2. So what do you observe? Do you observe that this minus this is same as this minus this is going to be same as this minus this? So that is called beat period.
एंड दिस मीन्स T1 माइनस T0 या तो T2 माइनस T1 या तो T3 माइनस T2 एंड सो ऑन. एंड देयरफॉर व्हाट इज डेल्टा T? Is it 1 upon F1 difference F2? Is it 1 upon F1 difference F2? इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा F bit frequency is 1 upon delta T is only F1 difference F2. समझा? अगर वैक्सिंग के लिए ये आंसर आया तो वेनिंग के लिए यही आंसर आना चाहिए. देखते आता है कि नहीं. Now R is 2A cos of R is 2A cos of pi F1 difference F2 T is equal to 0. 0 upon anything is 0. So cos of pi F1 difference F2 T is equal to 0. That means pi F1 difference F2 T is cos inverse of 0. कौन से एंगल के लिए cos 0 pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 and so on. So can I say pi F1 difference F2 T is equal to 2n minus 1 या तो plus 1 pi by 2 चलेगा. 2n minus 1 इसके पहले वाला और इंटीजर है and 2n plus 1 इसके बाद वाला और इंटीजर है. Yes or no? Pi pi by by again. Yes or no? This gives me T is equal to 2n minus 1 या तो plus 1 upon 2 times F1 difference F2. Yes or no? 2n minus 1 या तो 2n plus 1 upon 2. ये F1 difference F2 नीचे लिया मैंने. अभी अगर मैं n 0 रखता हूं तो 2 zeros are minus 1. मुझे माइनस वैल्यू नहीं चाहिए because I don't want time to be negative. तो मैं सीधा t equal to 1 लूंगा या तो n equal to 1 लूंगा. n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. चलो 1 के लिए क्या आंसर आएगा? t1 is equal to 2 1 2 minus 1 1 upon 2 f1 difference f2. Next one 3 upon 2 f1 difference f2. Next 5 upon 2 F1 difference F2. आंसर सेम आ रहा है कि नहीं बेटा? इसका मतलब व्हाट इज डेल्टा t? सेम आर्ग्यूमेंट. व्हाट इज डेल्टा t? T1 minus T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3 and so on. Therefore what is my answer? Same. What is my answer? Same. And therefore what is my answer? Same. What does this mean? The vaccines and venings are heard at regular intervals of time. And what is that? Reciprocal of difference of frequency. Reciprocal of Difference of frequencies. अब बेटा ये लेस देन 10 हर्ट्ज क्यों होना चाहिए? लेस देन 10 हर्ट्ज क्यों होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू परसिस्टेंस ऑफ साउंड, अकॉर्डिंग टू परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ह्यूमन ब्रेन कैन अंडरस्टैंड द साउंड सिलेबल्स इफ द टाइम डिफरेंस इज मोर देन 1/10. बिकॉज अगर टाइम इससे कम है ना तो वो इतना फास्ट चला जाता है कि पता ही नहीं चलता. लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल. मैं आपको दो ट्यूनिंग फॉर्क्स देता हूं. एक का फ्रीक्वेंसी है 320 हर्ट्ज और एक का फ्रीक्वेंसी है 420 हर्ट्ज. तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, बराबर. F1 इज नॉट इक्वल टू F2. डिफरेंस कितना है? 100. अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 100 है मतलब टाइम का डिफरेंस 0.01 सेकेंड्स is 10 times faster than what your brain can understand. मतलब बिट्स फॉर्म तो हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा. यस और बिट्स फॉर्म हुआ है लेकिन ह्यूमन ब्रेन का ये कैपेसिटी नहीं है. आप लोगों ने न्यूटन डिस्क के बारे में सुना है? न्यूटन डिस्क चैप्टर लाइट, उसमें बेटा एक सर्कुलर डिस्क बनाते हैं ड्राइंग पेपर में से. ओके और उसमें 7 ब्लॉक्स बना के उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे 7 कलर से पेंट करते. देन यू पिवोट इट ऑन अ नीडल and you just move it slowly, very slowly. बराबर? It is something like I am just taking this and moving it very slowly. Means I am not switching on the fan. I am just moving it very slowly. Correct? अभी मैंने मान लो सीलिंग के ऊपर एक ब्लैक डॉट बनाया था, तो ये डॉट 3 बार ब्लॉक होता है. मुझे 3 बार नहीं दिखेगा बिकॉज एक बार वो ब्लेड इज ओपेक ना, तो आई वोंट बी एबल टू सी दिस. बट व्हाट इफ यू स्विच ऑन द फैन? वो हमेशा दिखेगा.
यस और हमेशा दिखेगा, बिकॉज बाय द टाइम योर ब्रेन अंडरस्टैंड्स कि ब्लॉक स्पॉट मुझे नहीं दिखा, तब तक वो ब्लेड आगे जा चुका है। यस और बेड पे सोते सोते मोबाइल फोन से चालू फैन की रिकॉर्डिंग करो और बाद में वही चालू फैन की फोटोग्राफ मोड पे जाके फोटोग्राफ लो। तो जब रिकॉर्डिंग करोगे ना तो वो ब्लेड फास्ट फास्ट मूव होते हुए दिखेगा, तो जब फोटोग्राफ लोगे ना तो एकदम क्लियरली 3 ब्लेड्स दिखेगा, बिकॉज इट इज जस्ट हैपनिंग एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। So out of multiple visuals, only one visual is captured. Are you getting this? That is called persistence of vision. This is called persistence of sound. मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का कि बिट्स आर फॉर्म्ड पूछा है कि बिट्स आर हर्ड पूछा है। 99.9% क्वेश्चन बिट्स आर हर्ड का होता है। तो यहाँ पे बिट्स आर फॉर्म्ड बट दे आर नॉट हर्ड। बट व्हाट इफ आई टेक दिस वैल्यू एज दिस? Bits are formed also, bits are heard also, because the frequency difference is 5, right? That means time difference is 1/5. This is 0.2. Persistence of sound is 0.1. This is happening at 0.2, right? So it is going with half time. तो मुझे आराम से समझ में आता है, means I will be able to understand the bits. अभी bits practical life में कहाँ पे यूज होता है? Audio signals, video signals, military, everywhere. Music industry, everywhere. Audio signals for example. अभी तो अपना जो कार का जो मल्टीमीडिया होता है या तो अपना मोबाइल फोन के जो ऑडियो चैनल्स होते हैं, स्पॉटिफाई एंड ऑल दैट, दे डायरेक्टली कैच द फ्रीक्वेंसी एंड योर मोबाइल फोन इज स्ट्रेट अवे ट्यून विद दैट। पुराने जमाने के रेडियो, बाई चांस आपके ग्रैंडफादर या तो ग्रेट ग्रैंडफादर के कोई एंटिक पीस पापा ने संभाल के रखे होंगे, तो बेटा पुराना रेडियो ऐसा होता था, इसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता था, एक पॉइंटर होता था इधर, और इधर अलग अलग चैनल्स लिखे होते थे 98.3, 91.1, और इधर नॉब होता था, इधर 3 नॉब होते थे, एक वॉल्यूम का, एक फाइन ट्यूनिंग का और एक चैनल सेटिंग का। मैं 91 पे 1 पे आ रहा हूँ, 91.1 न्यूज आ रहा है, मुझे गाना सुनना, ये मैं ट्यून किया, ये मैं बीच के जो चैनल्स पे आया ना उसमें गर के आवाज। इसका मतलब रेडियो स्टेशन से जो चैनल्स ट्रांसमिट हुए, आपका रेडियो सेट अभी तक वो चैनल्स को कैच नहीं कर रहे, सो द फ्रीक्वेंसीज आर नॉट मैचिंग। द मोमेंट यू कम क्लोजर टू दिस, थोड़ी थोड़ी वॉइस क्लियर होना शुरू होगा, फिर बाद में अरिजीत सिंह का गाना बजेगा, आप लोग बोलोगे नहीं यार मुझे सुनिधि चौहान का गाना सुनना है, तो आप लोग नेक्स्ट चैनल पे। तो जब तक आप नेक्स्ट चैनल की क्लैरिटी पे नहीं आते तब तक वो फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो रहे। So when the frequencies are not matching, it is phenomenon of bits. The moment frequencies are matching, right, when F1 becomes F2, mind you, these frequencies are said to be in unison with each other, in agreement with each other. They are called resonating frequencies also sometimes. They are called resonating frequencies also sometimes. आपके घर में अभी सबके घर में स्मार्ट टीवी है, अब इसमें सब चैनल्स हैं, मतलब तू नहीं देखती हो बात अलग है, बट nowadays when people buy, right, it is value for money. They will buy a good quality TV, OLED and all that, latest technology, 3-4 लाख का टीवी आता है। अब उसमें सारे चैनल्स इनबिल्ट होते हैं, पूरा वाईफाई से कनेक्टेड होता है, राइट। आप एक रूम में बैठे हो, अब वाईफाई से कमांड दो, वहाँ का टीवी चालू हो जाएगा। आप अपनी कार में बैठे हो, राइट, आप अभी पार्किंग से घर पे पहुंचोगे, उसको पहले वाईफाई से कमांड दे दो, टीवी चालू हो जाएगा, राइट, लाइट्स डिम हो जाएगा एंड सो ऑन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो दिस इज योर स्मार्ट टीवी इज हैविंग सम फ्रीक्वेंसीज एंड व्हेन यू जस्ट गिव कमांड दोस फ्रीक्वेंसीज आर मैचिंग, राइट। अभी जैसे आपका जो फिंगरप्रिंट पासवर्ड है, तो आपका मोबाइल इसी से ऑपरेट होता है, और कोई बंदा आपका फोन स्टार्ट करेगा तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगा, मतलब वो उस हिसाब से उसका सॉफ्टवेयर सेट किया हुआ, राइट। सो आप जो भी टीवी चैनल देखना चाहते हो, मान लो आपने जियो सिनेमा पे दबाया बटन, तो सीधा जियो सिनेमा का पेज ही ओपन हो जाता है। बाद में उसे लिख के आता है आपको क्रिकेट देखना है क्या, आपको न्यूज़ देखना है क्या, आपको मूवी देखनी है क्या, आपको मूवी में हॉलीवुड मूवी देखनी है कि बॉलीवुड मूवी देखनी है, देन यू सिलेक्ट दैट। वापस अभी मान लो आपने बॉलीवुड मूवी सिलेक्ट किया, तो उसमें लिख के आएगा विच इज रैंक 1, विच इज रैंक 2, likewise. So those frequencies are selected very fast. Yes sir? Defense for example. मेरा जो भी आयरन डोम सिस्टम है वो रडार से चेक करता है कि कौन सा मिसाइल मेरी तरफ आ रहा है, डायरेक्टली वो फ्रीक्वेंसी को मैच करके
आई विल गो फॉर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, मेरे कंट्री में आया उससे पहले हवा में उड़ा दूंगा। सो सोचो फ्रीक्वेंसी कितना फास्ट मैच होता है। ओल्ड टाइम में व्हेन मोबाइल फोन्स वर नॉट देयर एंड इफ यू वांट टू टॉक टू समवन अब्रॉड, you will have to talk to the telephone department, MTNL. My son is in US. I want to talk to my son as per 7 p.m. IST, Indian Standard Time. Kindly call book a call for me. बराबर 7 बजने में 1 मिनट को शाम को, मतलब 7 बजे में फ़ोन के पास बैठना है, 7 बजने में 1 मिनट को ऑपरेटर का फ़ोन आएगा। As per your request, I am dialing call to your son. Stay there online. फिर मुझे होल्ड पे रखेगी वो, मेरे बेटे को फ़ोन लगाएगी, उधर मेरे बेटे को बोलेगी आपके डैडी आपसे बात करेंगे, देन दे विल शी विल पुट मी ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल, राइट। 1 मिनट का वो टाइम पे 20 रुपया चार्ज होता था, मतलब अगर मुझे मेरे बेटे से 3 मिनट बात करें तो 60 रुपीज़, और वो टाइम पे मेरा सैलरी होगा 2000 रुपीज़, क्योंकि एकदम ओल्ड टेक्नोलॉजी। अभी का टेक्नोलॉजी देखो, आपका बेटा यूएस में +1, वहाँ का नंबर डायरेक्ट करो, डायरेक्ट बात करो, आर यू गेटिंग, नो इंटरप्रेटर रिक्वायर्ड। अभी जितने लैंडलाइन फोन्स हैं देखो सब गायब हो गए। With every family member is having mobile phone. Why should I have their wired phone? किसी ने ऐसे ही aesthetic value करके घर में रखा हुआ बात अलग, but we hardly use it. Actually it is waste of money. पहले MTNL ये सब इनकी दादागिरी चलती थी, because monopoly. उसके बाद में पेजर का जमाना, बाद में पेजर 1-1.5 साल चला इंडिया में, बाद में मोबाइल फोन आया। तो इनिशियली मोबाइल फोन्स वर वेरी एक्सपेंसिव, इनकमिंग कॉल 16 रुपीज़, आउटगोइंग कॉल 32 रुपीज़, राइट। और बहुत गिने चुने लोगों के पास होता था। मतलब सोचो मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है और इसके पास मोबाइल फोन है, आई एम जेलस ऑफ हिम कि व्हाई द हेल ही इज हैविंग मोबाइल फोन। अभी इसका फालतू में बिल बढ़ा है, मैं इसको लैंडलाइन से फ़ोन करूंगा, इसने उठाया, मैंने फ़ोन रख दिया। अब इसने 1 सेकंड के लिए भी उठाया ना तो उसके बिल में आ गया 16 रुपीज़। मुझे सिर्फ इसको बस गरीब करना है कि साला देख मैं जानबूझ की तरह खर्चा करूँ। बाद में जैसे जैसे हैंडसेट्स बढ़ते गए, मोर द नंबर ऑफ यूजर्स द प्राइस विल कम डाउन। यस और नो? बाद में उन्होंने बोल दिया इनकमिंग फ्री, बाद में उन्होंने बोल दिया अभी हम लोगों ने बहुत लूट लिया तुम लोगों को, चलो आउटगोइंग भी फ्री, तुम लोग भी क्या याद करोगे। बट जो मोबाइल कंपनीज आए थे पहले इंडिया में, राइट, उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत चार्जेस लिए, बिकॉज उनका इन्वेस्टमेंट उतना था। When they launched the satellite, when they used this technology, when they hired the engineers, when they developed the software, when they check that there are no errors, इस पे बहुत खर्चा लगता है। And then when it goes to public, they get income from that. Is that clear? तो this is called tuning of frequencies. मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सर्किट्स में ये यूज होता है, tuning of frequencies. Musical instruments for example, कोई भी stringed instrument होता है, कोई भी stringed instrument, तो बेटा उसमें वायर्स होते हैं, yes or no? Now when you are playing this stringed instrument continuously, over a period of time, some strings will become loose. गिटार में for example there are 6 strings. आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे नॉब होता है। So चालू कॉन्सर्ट में कभी कभी आर्टिस्ट बजाते बजाते ये नॉब को टच करेगा और यूज करके टाइप। पियानो में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, कीबोर्ड में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, फ्रीक्वेंसीज आर फिक्स्ड। अभी सपोज एक आर्टिस्ट गिटार बजा रहा है, बाजू में पियानो बज रहा है, ड्रम्स बज रहे हैं, अब इसका स्ट्रिंग लूज हो गया तो ये सिर्फ पियानिस्ट की तरफ देखेगा, ऐसा हिंट देगा, मतलब मेरा कोई तो एक स्ट्रिंग लूज हुआ है, तो इन बिटवीन बजाते बजाते कोई एक नोट बजाएगा, से सी का फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। इन इंडियन म्यूजिक वी यूज द म्यूजिकल नोट्स एज सा रे गा मा पा धा नी सा। इन यूरोपियन नोट्स वी यूज C D E F G A B C। In Italian music they use do re mi fa sol la। वेरी गुड, किधर सीखा? स्कूल में। मैंने किधर सीखा? सो बेटा ये सा के ऊपर जो डॉट है, दिस सा मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी। So it is the 8th musical note which is having frequency double the first, right? It is called octave.
in standard language of music, global language, right? These frequencies are fixed. This frequency is 256 hertz. This frequency is 288 hertz. This frequency is 320 hertz. This frequency is 341.4. This frequency is 384. This frequency is 420. This frequency is 480. And this frequency is 512. So this is called an octave higher. सा के ऊपर डॉट. अगर मैं रिवर्स सीक्वेंस में जाऊं तो सा के नीचे डॉट आएगा and that frequency will be 128 hertz. Right? ये स्केल एक नॉर्मल म्यूजिकल स्केल होता है. That means almost every human beings can sing in this scale. 2-3 notes higher, 2-3 notes low. But उसके beyond हम लोग नहीं जा सकते. Because our vocal cords are not tuned as per that. So veteran singers, professional singers, they try to go beyond this and beyond this. So if you can cover 3 octaves in the musical scale, means you can become a good singer. Because you have tuned your vocal cords like that. Stationary waves में बेटा एक equation आने वाला है. Frequency of a wire is 1/2L/r root of t by pi rho. अभी भले फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम. इसमें एक ही चीज देखो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. वोकल कॉर्ड्स फीमेल्स में दिस पोर्शन इज फ्लैट, मेल्स में दिस पोर्शन इज प्रोट्रूडिंग. सो व्हेन यू टर्न 13 year of your age, 14 year of your age, this portion develops larynx box, right? तो मेल्स में जब वो कोई बच्चा होता है ना 5-6 साल का, 7 साल का, तो उसकी वॉइस भी देखो फेमिनाइन ही होती है. जैसे जैसे बच्चा 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का होता है, देयर आफ्टर द वॉइस स्टार्ट्स चेंजिंग बिकॉज द वोकल कॉर्ड्स बिकम थिक. फीमेल्स में इट इज लाइक दैट ओनली. सो फीमेल वोकल कॉर्ड्स आर थिन एंड देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज हाई. सो इट्स अ शार्प वॉइस, राइट, लाइक रिंगिंग बेल्स. Males में the vocal cords are thick, so the voice is dull, like फटा हुआ drum. You will be surprised. अभी मैं उसका भी एग्जाम्पल दिया, इनको थोड़ा खुश होने दे, बाद में आगे बोलता हूँ ना. Females में when they talk, then also we feel they are fighting. Because the voice is sharp. Amitabh Bachchan was rejected when he came to industry for 2 reasons. One, and second, voice. Now his category of voice is considered as a very good quality of voice because it is authoritative voice, right? अभी जब 3-4 साल पहले इंडिया में वर्ल्ड कप खेले थे, अपने यहाँ पे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं. सोनू निगम and अरिजीत सिंह and सुखविंदर पाजी and दलेर मेहंदी and what not. But Amitabh Bachchan ji was invited to sing national anthem. देखो एक तो ग्लोबल पर्सनालिटी है, फेमस है एकदम, प्लस उनका वॉइस ऑथोरिटी, राइट? अमिताभ बच्चन इज अ गुड सिंगर ऑल्सो. और उनके गाने आप सुनोगे ना तो लोअर नोट स्केल. दिस पर्टिकुलर म्यूजिकल स्केल इज ऑलमोस्ट विद ऑल द सिंगर्स इंक्लूडिंग अस बाथरूम सिंगर्स. हायर नोट्स सुखविंदर पाजी के गाने सुनना कभी, जिन्होंने जय हो गाया था और उसका मिला था. अरिजीत सिंह, राहत फतेह अली खान, हाई नोट्स. लोअर अगेन वेरी डिफिकल्ट. ये टाइप के सॉन्ग्स एकदम पुराने जमाने में बनते थे बिकॉज वो टाइप में मैस्कुलाइन वॉइस मींस वेरी ऑथोरिटी. पुराने जमाने का गाना. जब दिल ही हाई नोट्स, दलेर मेहंदी, राहत फतेह अली खान साहब. ऐसे जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं ना, उसमें कोई पार्टिसिपेंट्स जजेस को मस्का मारते हैं ताकि मार्क्स मिले. तो एक बार दलेर मेहंदी जी बैठे थे पैनल में, वो अनु मलिक के साथ और श्रेया घोषाल के साथ. तो एक कंटेस्टेंट आ गया, दलेर पाजी आई एम बिग फैन, मैंने आपके सारे गाने सुने. तो दलेर पाजी को मालूम पड़ा मस्का मार रहा है, मैं जज हूँ. ठीक है, आपने मेरे कौन से गाने सुने? सभी सुने. अच्छा, आपकी मर्जी का कोई भी गाना बोला. इसने शुरू किया, तुरंत दलेर मेहंदी ने बोला स्टॉप. आपने, अगर आप मेरे रियल फैन हो तो मैंने जो स्केल में गाया था वो स्केल में गाओ. अभी इसने अपने स्केल से शुरू किया,
सारे का बाबा तो नहीं था सा तुरक 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 गले में मैंने यहाँ से गाया था वो गाना। तो जब आप हायर नोट्स पे जाओगे आपका गला सपोर्ट ही नहीं करेगा, मीन्स यू आर नॉट अ ट्रू फ्रेंड। सिंगिंग ना, उसने क्या बोला था, आई एम योर ट्रू फ्रेंड, आई हैव हर्ड ऑल योर सॉन्ग्स, ओरिजिनल स्किल। अब जब ओरिजिनल स्किल से गाते ना तो म्यूजिक इंडस्ट्री में ये नहीं चलता आप इधर गाना गाते हो और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके गाना गाते हो। व्हेन यू परफॉर्म ऑन द स्टेज, ओरिजिनल मीन्स ओरिजिनल। तो यूट्यूब पे जो गाने लोड होते हैं, स्पॉटिफाई में लोड होते हैं, वो ओरिजिनल सिंगर्स के गाने होते हैं और उसमें कॉपीराइट्स रिजर्व्ड होता है। इफ यू सिंग दैट सॉन्ग एंड इफ यू पुट इट ऑन सम सोशल मीडिया एंड बाय चांस इफ यू स्टार्ट अर्निंग इनकम फ्रॉम दैट, दे विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू दैट यू डिड नॉट टेक माय परमिशन इन राइटिंग। कि वेदर आई अभी एकदम कोई पुराना ट्यून होता है ना, और वो मान लो वो म्यूजिशियन अभी 80 इयर्स ओल्ड है और अभी किसी नए म्यूजिशियन ने वो गाना कॉपी किया, तो उसको जाके पहले राइटिंग में लेना, सर मैं आपके ये गाना यूज करूँ, तो बोलेगा करो नो प्रॉब्लम, मुझे 25% रॉयल्टी दे देना। नागिन का गाना बहुत पुराना, नागिन का गाना 4-5, अभी वो एक पर्टिकुलर फ्लूट का ट्यून है और वो 4-5 बार यूज हुआ है 50 साल में। तो आज तक जो नागिन का गाना जिन्होंने बनाया था वो तो एक्सपायर हो गया, उसके सन को ये रॉयल्टी मिल रही है क्योंकि पापा ने कॉपीराइट्स लेके रखे। तो कोई भी बंदा वो गाना बजाएगा, अभी एक गाना सपोज पॉपुलर हो, उसके 1 करोड़ एल्बम्स बिक गए, एक सीडी का प्राइस है 100 रुपया, बस 100 करोड़ कमाया, तो बेटा बोलेगा 25 करोड़ मेरा, मेरे डैडी ने बनाया था। कॉपीराइट्स, लॉजिक समझा? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल म्यूजिकल स्किल। Back to unison. When the frequencies don't match, you will hear bits. बराबर? मतलब जब वो गिटारिस्ट अपना गिटार ट्यून करता है और जब तक उसको डिस्टर्बेंस लग रहा है, मतलब उसका म्यूजिकल स्किल पियानो के साथ मैच नहीं हुआ है। जैसे वो बिट्स सुनाई देना बंद हुआ, means F1 is F2, that means your musical skills are perfectly tuned। कोई पियानो आर्टिस्ट एक नोट बजाता है और कोई सिंगर वहां से नहीं गाता है ना, तो जजेस को तुरंत पता चलता है कि दिस पर्सन इज सिंगिंग आउट ऑफ ट्यून, स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। यू हैव टू बी परफेक्टली ट्यून्ड विद दैट पर्टिकुलर म्यूजिकल नोट। इफ F1 is double of F2, then this is called octave, right? This is octave of this, so this is 1 octave higher of this। उल्टा बोलना है तो this is 1 octave lower of this, this is 2 octaves lower of this, right? डबल का डबल, हाफ का हाफ, लाइक दैट। समझा? और किधर यूज होता है? दिस इज यूज इन डिटेक्टिंग द हार्मफुल गैसेस इन माइंड्स। जैसे स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द फॉर्मूला इज √3RT अपॉन m, या तो √3p/ρ, मींस इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। Likewise, speed of sound is √Γ p/ρ, where gamma is adiabatic ratio, right? Means it depends on ρ। तो सपोज मैंने एक साउंड पल्स भेजा माइंड में, राइट? बंदों को भेजने से पहले, ह्यूमन बींग्स को भेजने से पहले, लेबर्स को भेजने से पहले, वो साउंड पल्स जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आया, और अगर उसके वेलोसिटी में जो कुछ ऑल्टरेशन दिख रहा है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, तो मेरा जो मॉनिटर है ना वो पकड़ेगा कि ये फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो रहा है। अब मैं चेक करूंगा कि फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो रहा है, अच्छा तो कितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। अकॉर्डिंगली मेरे पास रेडीमेड चार्ट होता है, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फीन, ऐसा कोई भी एक टॉक्सिक गैस आया ना जिसके साथ वो फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, आई विल स्टॉप डिगिंग देयर बिकॉज मे बी द पॉइजनस गैसेस विल कम आउट। कभी कभी कोई गटर का काम चलता है, yes or no? So there, particularly when the floods come and then lot of flood is there, then lot of filthy smell is there and all that. So at some places they have to use this technique before sending people inside because that person may die also. So this is done with the help of bit frequency. So phenomenon of bits used everywhere. अभी तो ये मेडिकल साइंस में भी यूज हो रहा है। आपके हार्ट में सपोज एक वायर भेजा, या तो कोई आर्टिस्ट एक वायर भेजा, वहाँ पे आगे एकदम लेंस होता है, अभी लेंस के बदले साउंड डिटेक्टिंग मशीन होता है, तो आपके ओरिजिनल हार्ट बीट्स कितने कैसे सुनाई देने चाहिए। अब इसमें कुछ भी ऑल्टरेशन है, ज़्यादा या तो कम, तो कितना ज़्यादा है तो कितना कम है,
Accordingly, low BP and high BP is detected. Right? अगर suppose problem है, मतलब blood flow बराबर नहीं है, तो लोग check करेंगे कि किधर plaque का deposition है. Where are your arteries blocked? By how much block? So there is a machine called ultrasonic echocardiography machine. तो उसमें Doppler effect and phenomenon of bits दोनों use होता है. Yes or no? That means if the problem of heart is not detected with basic tests, then the doctors will advise कि no, still there is a problem, let us go for some advanced tests. So this comes under the category of advanced tests. आपका normal test suppose 1,000 rupees में हो जाता है. So this test take about 7,000, 8,000 rupees, but they will give you accurate result. So you can take precautions. समझा बेटा? Sure. Come to the article of phenomenon of bits. Page number 11. बीच में 2-3 पेजेस छोड़ दो, मैंने सिखाया नहीं है जानबूझ के, क्योंकि मुझे थोड़ा लेंथी वाला आर्टिकल कवर करना था. So we are on page number 11, 12 and half of 13. Mind you, Doppler effect का आर्टिकल is not there for NEET students. Doppler effect का आर्टिकल is not there for JEE main students also. मतलब जो स्टूडेंट्स का पोर्शन नेशनल लेवल है उनके लिए उन्होंने थोड़ा पोर्शन कम किया है. Doppler effect is deleted, greenhouse effect is deleted, radiation correction is deleted. But CET स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने सब रखा है, बिकॉज CET स्टूडेंट्स को कंपेरेटिवली कम पोर्शन होता है, राइट? थोड़े चैप्टर्स 11 के, सब चैप्टर्स 12 के, आपको सब 11 के सब 12 के. यस और सो Doppler effect is not there for you people. मैंने एक असाइनमेंट सेपरेटली Doppler effect का ही बनाया शायद, असाइनमेंट नंबर 3. तो उसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस, मिसेलेनियस के कुछ क्वेश्चंस और हॉट्स के कुछ क्वेश्चंस वो आप लोगों ने नहीं करना है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स ने वो नहीं करना. 3, 2, 1. रिवाइज पेज नंबर 11, 12 and half of 13. 11, 12 and half of 13.
कुछ तो डिस्कस हो चुके थे। असाइनमेंट पूरा हो गया। असाइनमेंट पूरा हो 2 गया। आप लोगों के बैच में पूरा हो गया। मुझे लगता है मैंने 1 to 26 दिए थे। 26 हटा दिया। हाँ, मतलब ये हो गया 26 मुझे लगता है क्विंग्स क्यूब एक्सपेरिमेंट और 25 तक हो गया, आप लोगों के बैच में हो गया। ठीक है, जरा नंबर्स चेक करना प्लीज। 14, 15, 16. My mistake, my mistake. असाइनमेंट 4 का जरा देखो ना क्वेश्चंस बराबर अच्छा बेटा, बाकी बैचेस में मैं आई कुड गो अप टू 40 ओनली, बट बिकॉज योर बैच इज अहेड ऑलरेडी हियर, बिकॉज बाकी सब बैचेस में मेरा 12 तक ही हुआ था लास्ट टाइम, आप लोगों के बैचेस में ये हो चुका है, तो आई विल गो लिटिल अहेड। अच्छा, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस which you can solve on your own because you already know this formulae from interference of light. तो जो intensity related questions है, example I1 upon I2 is A1 upon A2 square, ये आपको मालूम है, right? Imax upon Imean is A1 plus A2 upon A1 minus A2 the whole square, ये आपको मालूम है। R is root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos delta, ये भी आपको मालूम। And I is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos delta। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क दे दूंगा। We will discuss the answers, but you can check it. So as per you, assignment 2 में मैंने जो जो दिया था वो सब हो चुका है। Are you on assignment 3? Question 10. Is the answer coming as C? Yes. Did you get this? Yes. Wherever you need my help, please feel free to ask me. Don't hesitate. और मैं जो जो काम देता हूँ ईमानदारी से कर लेने का, वही दिन घर पे जाके। 11th आंसर बॉम्बे आया कि सॉल्व करूँ? आया सबको? श्योर। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज बॉम्बे 16 आया कि सॉल्व करूं? आया एवरीवन? श्योर। क्वेश्चन नंबर 15 इज इट मैचिंग विद द क्लोजेस्ट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? इज इट दिस a sin 2 pi by lambda vt plus x? Why plus x? Because very clearly they have mentioned that the wave is traveling along negative x direction. That means inside the bracket positive sign will come. Well, that problem is not there in this question because in all the options they have given plus sign. आपका आंसर बॉम्बे आ रहा है? 15th का आंसर बॉम्बे। 16th इसमें मुझे साइन कॉस का प्रॉब्लम नहीं है, साइन भी हो सकता है कॉस भी हो सकता है। इज द इक्वेशन ऑफ द टाइप a cos kx minus omega t plus alpha। x का पार्टनर k है माइंड यू, और t का पार्टनर ओमेगा। इज योर आंसर कमिंग एज a? इज योर आंसर कमिंग एज a? श्योर। क्वेश्चन नंबर 27 of assignment 4 इज योर आंसर ए? 27 का आंसर ए आ रहा है बेटा सबको? श्योर। 28 आंसर इज ए।
Help required? Anybody? Sure? Question 38. अच्छा एक मिनट. Question 29. Echo. Echo का कॉन्सेप्ट मालूम है? थोड़ा बहुत मालूम है? 17 मीटर इज ओनली फॉर अर्थ, माइंड यू. उसमें थोड़ा ध्यान रखने का, रट्टा मार के नहीं जाने का. उन्होंने 5-6 साल पहले एक सीईटी में क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा ट्रिकी दे दिया. फॉर अ पर्टिकुलर प्लैनेट स्पीड ऑफ साउंड इज 500 मीटर्स पर सेकेंड. देन व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन फॉर डिस्टेंस फॉर echo टू बी हर्ड? अब ध्यान से सुनो. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम while going, then it strikes the wall and it comes back. So distance upon time while coming back. So V is equal to 2D upon T. So what is the condition for distance? Distance should be Vt upon 2. ये फॉर्मूला आएगा. अब आप लोगों ने जो 17 मीटर बोला वो अर्थ के लिए बोला, because speed of sound when they don't mention you can take it as 340. The correct value is 332 at 0 degrees Celsius. And then when I start with sound waves, we are going to prove that for every 1 degree rise in temperature, velocity of sound increases by 0.6 meters per second. So suppose room temperature is 25 degrees Celsius right now, into 25. That means it will increase by 15 meters per second. So 332 plus 15 should be the speed of sound right now in this classroom. Anyways, जब कुछ नहीं देते हैं तो आप लोग 340 ले सकते हो. Now this part is persistence of sound for human brain upon 2 and therefore the distance is 17 meter. अब उन्होंने ट्रिकी वे में वो क्वेश्चन कैसे घुमा दिया था? फॉर अ पर्टिकुलर प्लैनेट स्पीड ऑफ साउंड इज 500. हाँ, और उन्होंने एक ऑप्शन जानबूझ के 17 दिया था. करेक्ट आंसर था 25 मीटर. सो रादर देन मगिंग अप द वैल्यू, बेटर टू नो द फॉर्मूला. ओके, सो echo is basically what? Multiple reflection of sound, right? For example, if you go to big auditorium, ये क्लास में echo सुनना पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज दिस डिस्टेंस मैक्सिमम भी मैं अगर गिनूं ना बॉडी डायगोनल तो भी शायद 8 मीटर होता शायद. करेक्ट. सो व्हेन यू गो टू माउंटेन क्लिफ्स, देयर यू हैव सम पॉइंट्स कॉल्ड echo points. तो वहाँ पे वो माउंटेन क्लिफ्स का हाइट उतना होता है. कैन यू से नया नया. सो इट गोज, कम्स बैक, अगेन गोज, बट व्हेन इट अगेन गोज इट गोज विद लोअर इंटेंसिटी, कम्स बैक, अगेन गोज, कम्स बैक. So you might get to hear 2-3 reflections. Correct? So for Earth it is okay 17 meter. So as per the question answer 17 बराबर. Question number 30 के ऊपर लिखो बेटा. Question number 30 के ऊपर लिखो problems related to intensity. Question number 30 to 37. Question number 30 to 37 are the questions on intensity of wave. Mind you, these are the formulae to be used. So I am sure you will be able to crack all these questions on your own. चाहिए तो at the top of the page you can make a note of this formula. So 30 to 37 homework for you for the next class. 31 में थोड़ा misprint दिख रहा है. फर्स्ट ऑप्शन 51 दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑप्शन I, थर्ड ऑप्शन 31 दिखाई दे रहा है, फोर्थ ऑप्शन 161 दिखाई दे रहा है. दे आर रिस्पेक्टिवली 5I, I, 3I एंड 69. वो लास्ट वाला 1 नहीं है, वो I है. दे आर रिस्पेक्टिवली 5I, I, 3I एंड 69. So 30 to 37 homework. Are we on 38? इसमें बेटा वेव इक्वेशन उल्लू बनाने के लिए दिया था. What is the amplitude of the first wave? 0.06. What is the amplitude of the second wave? 0.03. So answer. The answer is 4:1. Question 39. अब ये बेटा मैंने गलती से दे दिया था लास्ट टाइम, क्योंकि बिट्स का फिनोमेनन मैंने आज कर रहा है, तो 39 मैंने बाय मिस्टेक दिया था. सॉरी फॉर दैट. 39 चेक करो प्लीज. The number of bits produced per second by the vibrations, x1 is equal to a sin 320 pi t, x1 is equal to a sin 320 pi t, and x2 is equal to a sin 326 pi t. तो बेटा ये ओमेगा 1 हुआ कि नहीं? ब्रैकेट ब्रैकेट. और ये ब्रैकेट ओमेगा 2 हुआ कि नहीं?
So what is delta omega? 6 pi. So what is 2 pi delta f? 6 pi. Therefore delta f should be 3. समझा कि वापस बोलूं? This is of the type a sin omega t, mind you. आप चाहो तो उसको a sin 2 pi ft में कन्वर्ट कर सकते हो, जरूरत नहीं है. I know omega 1, I know omega 2. I can find out delta omega. Delta omega is 2 pi delta f. My answer is 3 hertz or 3 beats per second. Question number 40. ये भी मैंने गलती से दे दिया. इजी है बेटा. फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है 2. फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है 2. तो टाइम का डिफरेंस होना चाहिए हाफ. हाँ, तो अभी जितने भी सम्स दिए थे मैंने वो बिट्स वाले थे. तो नाउ वी कैन डू दैट. ओके, डोंट स्टार्ट विथ मी प्लीज, आई विल गिव यू एनफ टाइम. 41. आप लोग 39th क्वेश्चन के ऊपर लिख के रखो. to 49. 39 to 49 problems on bids. Okay, now check one by one. Don't start with me. Question number 41. There are two tuning forks of frequencies 256 and 258 hertz. No, ये 40 पढ़ रहा हूँ. 40 तो हो गया ना? 41. Sorry. Two sound waves of wavelength 81 centimeter. Lambda 1 is 81 centimeter. Lambda 2 is 82.5 centimeter. They produce 8 beats per second. पहले तो common sense apply करो. Medium is the same. Because medium is the same, इसका मतलब velocity of sound should be the same. बराबर? Velocity of sound should be the same. Wavelengths are not same. तो frequencies cannot be the same. अब मुझे ये individual frequencies नहीं मालूम, लेकिन इनका डिफरेंस मालूम है. F1 is not equal to F2 and delta F कितना बीट्स दिया है? 8. What is expected speed of sound? Speed of sound. Okay, don't start with me please. Don't start with me. Do you agree with me? V is equal to F1 lambda 1 and V is equal to F2 lambda 2 also. Right? Do you agree with me? Do you agree with me? Therefore, F1 is V upon lambda 1 and F2 is equal to V upon lambda 2. For sure, lambda 1 is less than lambda 2. That means for sure, frequency 1 is more than frequency 2. तो जब मुझे डेल्टा F लिखना है, मैं कंफ्यूज था कि F1 minus F2 लिखूं कि F2 minus F1 लिखूं. अभी मैं श्योर हूं. तो can I say F1 minus F2 is 8. But F1 is V upon lambda 1, F2 is V upon lambda 2 is equal to 8. V common, 1 upon lambda 1, that means 1 upon 81 minus 1 upon 82.5 is equal to 8. So V, 82.5 minus 81 upon 81 into 82.5 is equal to 8. That gives me V is equal to 8 into 81 into 82.5 upon 1.5. So can I write this as 15,825? I think ये जाना चाहिए. 15 5s are 75, 7. 15 5s are again. Yes or no? 55 8s are 440 into 81. ये आपका आंसर 5 डिजिट में आएगा. रीजन ये सेंटीमीटर में, राइट? तो आपका आंसर 3 डिजिट में मीटर पर सेकेंड में आएगा. 3 5 समझा? चलो बेटा कॉपी करो. बोर्ड्स में 3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट वाला, एक बिट्स वाला और एक स्टेशनरी वेव्स कैसे फॉर्म होते हैं वो. लेकिन फ्रैंकली बोलूं ना, एक डेरिवेशन ढंग से करोगे ना, बाकी का तो सिमिलर.
ये बेचारा काम के बोझ का मारा कुछ लेता तो नेक्स्ट कर ना पागल, टाइम नहीं है अपने पास। नेक्स्ट तीनों सम सेम है, कर। गॉड ब्लेस यू। 41 में बोलो सॉल्व 44। 44 के लिए थोड़ा जगह छोड़ देना। 41 एंड 44 आर सिमिलर, 42 एंड 43 आर सिमिलर। तो 42 और 43 में से मैं कोई एक करके बताता हूँ। नेक्स्ट वीक डीसीटी आ, ये संडे वेव मोशन था नहीं करके मैंने ये वीक में डीसीटी नहीं लिया है, बट इन 2 lectures we have done quite a lot. I can easily set DCT paper. Come prepared. चलो बेटा 42 43 में से कोई भी एक करके बताता हूँ, आप लोग बताओ, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन दिया है ना उसने, फ्रैक्शन। 43 ये थोड़ा अलग ही टाइप है, बिकॉज इसमें थर्ड नोट भी दिया है। देयर आर 2 साउंड नोट्स ऑफ वेवलेंथ 85 by 133. वेवलेंथ नंबर 1 85 by 133 मीटर। वेवलेंथ नंबर 2 85 by 137 मीटर। अब सोचो इनका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा बेटा, yes or no? F1 will not be equal to F2, but they are saying that this particular nodes are producing 8 beats per second with the third wave. इसका मतलब ये हुआ कि this is producing 8 beats per second with the third one, and this is also producing 8 beats per second with the third one. मतलब ये 2 का रिलेशन नहीं है, अभी 3 का रिलेशन है, yes or no? Now apply common sense. लैम्डा 1 is more than लैम्डा 2. सोचो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर्स कंपेयर करना होता है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम वो ज्यादा। सो लैम्डा 1 is more than लैम्डा 2, इसका मतलब F1 is less than F2. yes or no? मस्त क्वेश्चन है बेटा, मस्त क्वेश्चन है, 5 स्टार मार्क करो। इसका मतलब ये हुआ कि F1 should be chosen as, F1 should be less F3 minus 8 and F2 should be chosen as F3 plus 8. सोचो दोनों प्लस नहीं हो सकते बेटा, नहीं तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो। एक मिनट, अगर मैंने F1 को भी F3 minus 8 लिखा और F2 तो भी F3 minus 8 लिखा, मतलब F1 equal to F2 हो गया, तो बीट्स कैसे सुनाई दिया फिर? समझा कि वापस बोलो। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि बड़ा कौन है। इज F2 बड़ा? अब अगर F2 बड़ा है तो उसको प्लस साइन के साथ लेना चाहिए, तो इसको माइनस साइन के साथ। अप्लाई कॉमन सेंस, दोनों प्लस नहीं ले सकते, नहीं तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी। दोनों माइनस नहीं रहते तो भी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। एक प्लस है एक माइनस है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है वो डिसाइड करना है। कौन सा प्लस आया? F2, मतलब अभी ये दोनों में F2 बड़ा है, सो कैन आई से F2 minus F1 should be 16. This is V upon lambda 2 minus V upon lambda 1. This is 16. V common, 1 upon lambda 2 minus 1 upon lambda 1 is equal to 16. Therefore V 1 upon lambda 2 ulta 137 upon 85 minus 133 upon 85. This is equal to 16. So V, this is 4 upon 85 is equal to 16, right? So V, 85 16s are upon 4. 4 4s are. My answer is 320 meters per second. Two good questions. 340. I'm so sorry. 170 kind of. I'm so sorry. 42 was easy, that means 42 में थर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बोले, 43 was tough, underline third frequency. 43 was tough, yes.
बेटा आप लोगों का बैच ऑलरेडी 6-7 क्वेश्चंस आ गए. So I will have to stop here because other batches मैं फिर बाई चांस तो ये वीडियो देखेगा तो आगे पीछे आगे जाने तो आई डोंट माइंड स्टॉप रिकॉर्डिंग. बट लेकिन मैं हर एक लेक्चर यही रिकॉर्ड करता हूँ. चलो जाने हैं आगे तो आई डोंट माइंड. जहाँ तक जा सकते हो. मैं चेक कर लेता हूँ अगर आप लोग खुद से कर सकते हो एक बार करके आओ बाद में डिस्कस. Anyways, stop here for the day. Understood the lecture of the day? Very important lecture.